So today we are going to learn about handrails. What are these and how you can do it? Okay. So you will be needing a pen or a pencil or okay, a pen, pencil, marker, anything you have right now, and a paper. This paper can be plain or can be ruled like I am going to use here. Okay. Is it clear? Just keep on saying yes and no. Okay. So that I can proceed with it. Do you guys have this pen, paper, Yes. pencil or anything? Okay, great. So handles, let me write it over here. Handles. Okay. So why do we do handles before even jumping over basic strokes? So handles are very important. Why? Because it allows your hand to move in all the directions. Okay. It's a kind of hand warm up. Obviously, Uh, just a second. Obviously, you can move your hand in all the direction without even doing the warm up, but still, you need a little bit warm up before doing calligraphy. It's not only for calligraphy, you can also use this hand drills before doing any painting or anything which requires a lot of movement of your hand. Okay? So, अच्छा किसी को भी इशू हो लैंग्वेज का प्लीज 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 डू लेट मी नो ठीक है सो दैट आई विल कीप इट बाइलिंगुअल अदरवाइज अगर कोई इशू नहीं है देन लेट्स कीप इट इन इंग्लिश मे बी बोथ द लैंग्वेजेस ठीक है चलिए सो हैंड ड्रिल्स अभी मैंने बता दिया व्हाई दीज आर इम्पॉर्टेंट इट अलाउज योर हैंड टू मूव इन ऑल द डायरेक्शंस राइट freely. So let's do it. The first one is clockwise. So in clockwise, what you have to do, I hope my camera is clear. My video is clear to you. Audio, Yes. video, everything is clear, right? Okay. So clockwise. How it works, you have to take the pen in your hand and then start from this point. Take any point anywhere and then from there just keep moving in clockwise direction, okay? Remember, you don't have to move your whole hand. Okay, I hope my hand is visible here. You don't have to do it like this. Okay, see, my whole wrist is moving, everything is moving, right? You don't have to do this. You just have to move your hand like this. Only this part will move, not this part. Fine? So, this is how you are going to do clockwise. Just keep making it dark until you feel like it's going to be, yeah, till here. I'm going to make it really dark. You can use a pencil or even a pen which is not even working because this is just for the hand practice. Do along with me. Do this practice with me. Okay. Now you can make as many circles as you want, but here I am only making two. Fine. This is clockwise. So we have started from this point. Now, this is anti-clockwise. So now we are going to start it oppositely. Anti-clockwise. Again the same thing. See how my hand is moving. I'm not moving my whole hand. Instead, I'm only moving the necessary part which is required in this. Fine? Very dark. Until you feel like the page is going to be ruined. Okay? One again from this part you're going to start it
like this. सबको समझ रहा है ना? Any issue? Any question you guys want to ask? This is something which you need to do with me. आपको मेरे साथ करना है ये, ठीक है? ऑल्सो आप सभी की किट जो है वो डिस्पैच हो गई है. फाइन. सो यू विल गेट इट as soon as possible. But as the kits थोड़ा लेट हमारी जो है डिस्पैच हुई है, here is the tracking code which I will be sharing with you after the class. So I have decided to keep the classes on alternative days. Till then you all get the kit. Fine. So classes will be, I'll send the note in the group, but I'm just telling you over here too. So first is your clockwise, second is your anti-clockwise, then third it will be you can do this. You'll start like and clockwise, anti-clockwise, but in a different way. How? First, let's take clockwise. So you'll start from this point, and then again you make a circle. Fine. But this time you'll move slowly, slowly, slowly downwards, and you'll make a shape like this. Okay. Then you'll go up. Then again you'll come down, up, down, up, down, up, down. Keep doing it until you feel like it's really dark. Okay, and you can't move your hand on the paper anymore. Otherwise, it will going to be torn. It will tear up. Okay, so just keep on doing it, but remember you are doing it clockwise. Fine. See, it's really dark now. So I'm leaving it. And just one I'm making over here. Now second, fourth one, I'll make it over here only. Fourth is your anti-clockwise. And we are going to do the same thing, okay? We are going from upward to downward. And then from downwards to upward. So let's do it now with anti-clockwise. So from this point, I'm going to start slowly, slowly, slowly. I'll move downwards. Then upwards. Then again downwards. And I'll keep on doing it until it become really dark. Any question, anyone? किसी का कोई सवाल? अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए. किसी के माइक से पीछे ना रोड की आवाज आ रही है. See, again it's really, really dark. Okay, so I'm leaving it over here. Now, next is 1, 2, 3, 4, and then we have one more, which is like again clockwise and anti-clockwise. By here, what you will do, you will move your hand slowly, slowly to the side edge, like this. Then again, you will come down
Not come down, actually, come back to that same point. Currently, I'm doing this activity for more than 10 minutes, I guess. But when you are going to do this before your calligraphy or any hand painting, just give at least 5 minutes will be enough. Or if you don't want to give this much time, then at least 2 minutes. Okay. This is how you're training your muscles, your hand muscles to move freely, right? Also, how many of you have made that pen which I have shared with you in the previous class? How many of you have made it? Let me know. Do not write it in the chat box because I'm not looking at the phone right now. So tell me, बनाया आप लोगों ने? जी Very good. Who is this? हानिया Hania. Great, Hania. Even Hania was not there in the class. She watched the recordings, right? So which one have you made? पेंसिल वन Pencil wala. Okay, great. What about others? बाकी लोगों ने? Now this is anti-clockwise, Yes, okay? Afi. Yes, Alia. Yes, आपने Afi, I have made it. very, Both of them I have made it. very good. Very good. And Arshi, so I think you two already have the pen, right? Yes, Api. I'm having already my column. Okay. And what about others? Do we have who else is left? Rafat ji, she also have the pen. And I think there are only 4 students in the class right now, right? Okay. So this is how you're going to do it. Now I'm doing it on the last page. One more, which is zigzag. Which is zigzag. So what you have to do for it, you have to make two lines parallel to each other. इसको यहाँ तक ले लेते हैं, otherwise वो फिर फट जाएगा. Parallel to each other. Fine. Like this. दो लाइनें आपने बनानी, बीच वाली को काउंट नहीं करना. अब इन दो लाइनों के बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन और लगानी है. Like this. Fine. इस तरह से. So now you will get a shape like this. ये तो Z बन गया, बट हमने बनाया इसको उल्टा Z. You can make either one of it. Fine. Both are fine. कोई भी एक ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, उल्टा Z या सीधा Z, depends. And then आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, बड़ी वाली साइड से स्टार्ट करना है. एंड यू विल डू द सेम थिंग जो भी हमने की है here. But now you will only fill this part. Okay, slowly you are making it small. I forgot where is the line. And then you're coming again back. Okay, I'm getting confused in this. I'm going to keep this line. Start with the big loops and then slowly convert them into small. Like here I am doing. ऑल्सो मुझे ना क्लास की कोई भी मैं अपडेट दिया करूँ आप लोगों को, मुझे ये सेंड करना है, शेयर करना है, या मैंने ऐसा कहा था, मुझे याद दिला दिया करो. बिकॉज आई हैव अ मेमोरी ऑफ गोल्ड फिश, so I keep on forgetting things. I was like supposed to send that pen video
earlier to you guys, but then again I forgot it. So that's why I send it really late. So please write, not right after the class, but उसके बाद मुझे याद दिला देना अगर मैं फिर भी ना भेजूँ शाम तक तो। ठीक है? So see, it's really dark now, so I'm leaving it over here. Now, next is अभी आपने यहाँ से जब start करा था तो it was clockwise. Now, when you are going to start it from this point, then it will be your anti-clockwise. ठीक है? Same thing you have to do over here also. I'm again going to take this one, this line, okay? But do keep in your mind that you don't have to mix these two. These two should be, you know, different from each other. They should not merge. And slowly you will move further. And the more you'll move, the smaller loop you will make. And keep on doing it until it becomes really dark. Small loops, then big loops. Okay. So this is a similar, and the last one is your zigzag loop. This is how you're going to make freely. Just keep your hand, you know, free and just make one loop like this. Infinity loop. Let me see. Where is my- Okay. Infinity loop. And after this, just keep on doing it until it becomes really dark. Just see my hand movement, okay? You don't have to do it like this. पूरा हाथ नहीं हिलाना है. See, even I am moving when I'm singing. My voice is not stable because I'm moving my whole hand, right? But when I'm not, when I'm just moving the necessary part, like not the whole wrist, then my voice is also stable. Right? Do try it. Try to move your whole hand. You'll see how your voice is shaking. At least it do on me. It does on me. Keep making it dark. This is your infinity loop. Okay? Now, after this, we'll do one more. We will learn about the angles, but abhi azan ho rahi hai. So, I am giving you 5 minutes break. Okay, everyone? Just go and have some water or just give some rest to your hand and then come back after 5 minutes. Okay? So, go. It's a break. Okay. So, let's start with angles. So for angles, you will be needing one protector, one D, which have an instrument which we use, not instrument, which we use to measure the angles. Okay. So I'll keep this over here. I'm using it so that it will be more clear to you guys. Just let me know. Is it visible to you? Are you able to see this clearly? Yes. Yes. Okay, great. Yes, ma'am. So here I have like made a very random one. I'll take one point, this point for example, as 0 degree. Okay?
and this one will be your 90 degree का angle. इसका half will be your 45 degree का angle. Now, अभी एक सीधी लाइन में लगा रही हूँ यहाँ से. So यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है आपका, this is your 90 degree का angle. ठीक है, ये 90 degree का angle होता है. उसके बाद ये जो इसका हाफ करते हैं हम, वो होता है आपका 45 डिग्री का एंगल. फाइन, 45 डिग्री का एंगल. एंड ये स्ट्रेट जो है वो क्या है आपका 0 डिग्री का एंगल. ठीक है, तो आपके कैलीग्राफी के अंदर एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंगल्स के थ्रू आप अपने कलम को सही तरह से पकड़ पाते हैं. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर अरेबिक कैलीग्राफी बट ऑल्सो फॉर अदर कैलीग्राफीज. फॉर एग्जाम्पल नश्तालिक है, ठीक है, ख़तल विसाम है, एंड वी हैव दिस इंग्लिश कैलीग्राफी है. ओके, वी हैव ब्रॉड एज. Sometimes I forget, I fumble a lot sometimes. ब्रॉड एज पेन की जो कैलीग्राफी होती है. ओके, लाइक दिस Gothic calligraphy, italic calligraphy, right? So they use different angles. The angle which I'm going to use over here, it will be different for other scripts. Even in Arabic calligraphy, it will be different. Like for Nastaliq, it will be different angle which we are going to use. For Qadar Sulus, it will be different. And similarly, for other scripts, we are going to use a different angle. But here, let's talk about, like, first let's understand what angles are and how it works. Okay, so here I have made this roughly drawing, जिसमें एक 0 डिग्री का एंगल दिया, 45 का दिया एंड 90 का दिया. नाउ अभी आप क्या करेंगे, डू बाय वन. एक ऐसा ना परचेज कर लेना. मेरा यही रखा था बट अभी आई एम अनएबल टू फाइंड इट एज ऑलवेज. ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से ना पूरे जो डी है उसका सिर्फ ये पार्ट लेना है हमें. व्हाट हैपेंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन. ओके, तो उसको एक ले लेना, उससे आपका जो है अभी उसी से प्रैक्टिस करनी है आपको, तो इट विल बी ग्रेट. उसकी एक बार आपको एंगल समझ आ जाएंगे, क्योंकि अरेबिक कैलीग्राफी हो या फिर ब्रॉडेज पेन कैलीग्राफी हो, इसमें मोस्टली आपका जितना भी, इट्स ऑल अबाउट योर थिक एंड थिन स्ट्रोक्स. आपके मोटे और पतले स्ट्रोक्स का ही सारा खेल है ये, तो इसलिए ये एंगल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो आप प्लीज़ इसको एक बाय कर लेना. हार्डली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 रुपीज़, माइट बी 5 और 10. ओके, सो इसको ले लेना. अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाली साइड पे ध्यान देना है, इधर वाली साइड पे नहीं जाना है. ठीक है, ये 180 डिग्री तक आपको, 90 टू 180 डिग्री का आपका कोई लेना देना नहीं है. सो इस वाली साइड को हम बिल्कुल छोड़ देंगे. हमारी साइड कौन सी है, 0 टू 90 डिग्री वाली. अब आपने क्या करना है, यहाँ से 10 एंगल का मैं रेंडम लगा रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 10 डिग्री, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40 एंड इसको चलो अभी 45 ले लेते हैं. दिस इज 50, 60, 70, 80 एंड 90. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ एंगल्स मेरे पास आ गए. अभी मैं क्या करूँगी, मैं फिलहाल तो मैं इस पर एक लाइन लगा लेती हूँ ऐसे करके इसको कनेक्ट करने के लिए. सी हियर आई एम मेकिंग द रैंडम वन, बट आप लोग इसको रैंडमली मत बनाना. मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ. आप लोग के अगर डी ना हो तो प्लीज़ डू बाय इट. इस तरीके से एंगल्स बने हुए होते हैं ना उसके अंदर. तो अभी आपने क्या करना है, आपने अभी पहले 0 डिग्री के एंगल से स्टार्ट करना है. नाउ व्हाट यू विल डू, आपका जो कलम आपने रेडी किया है, ठीक है, पेंसिल वाला कलम रेडी किया है, या फिर आपने जो है ये जो हमने बनाया था वो वाला कलम रेडी किया है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप उस कलम को लेंगे
मैं फिलहाल यहाँ पे एक मार्कर टाइप ले लेती हूँ। इफ यू डोंट हैव एनी कलम और अभी क्योंकि इंक नहीं होगी आपके पास, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द दिस हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज हाइलाइटर की जो टिप होती है वो भी सिजल टिप होती है, तो यू कैन यूज दैट। फाइन। तो नाउ व्हाट यू विल डू, आप 0 डिग्री के एंगल पर अपने पेन को, कलम को या फिर अपना जो मार्कर है उसको रखेंगे 0 डिग्री के एंगल पर। अभी क्या करेंगे, उसी एंगल पर रखकर यू हैव टू ड्रॉ लाइंस 1 2 3। इसको ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री पर ही रहना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री पर। ठीक है, करीब 10 लाइनें बनाएंगे आप 0 डिग्री के ऊपर। कितनी बनाएंगे, 10 लाइन्स 0 डिग्री। अभी क्या करना है, यू हैव टू मूव योर पेन टू 10 डिग्री। ठीक है, अभी 10 डिग्री पे आके, 10 डिग्री पे आके अब लाइंस लगानी है आपने, ये भी 10 लाइनें लगानी है। ठीक है, 10 लाइंस। अब अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 0 डिग्री का जो एंगल था उसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, चलो नीचे वाला ले लेते हैं, अपर को छोड़ दो क्योंकि एंड भी वो सेम ही एंगल पे करेगा। तो ये जो पार्ट है आपका स्ट्रेट आ रहा है, राइट, ये स्ट्रेट आ रहा है आपका, एकदम फ्लैट आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका 0 डिग्री का एंगल है। और ये आपका जो 0 डिग्री का एंगल होता है ये पूरी विड्थ लेता है आपके कलम की। अगर आपका कलम मेरा ये 5 mm का है तो 5 mm पूरा आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 mm मेरा इस पे पेज पर आ रहा है। इनके अब मैंने जैसे 10 mm लिया तो ये 10 mm मेरा स्टार्ट ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है। अब सी ये हल्का सा टेढ़ा जा रहा है, मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाऊं सो देयर इज अ गैप। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे से सर्कल जितना गैप आ रहा है, ये गैप क्या है आपका, ये 10 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइन, 10 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऊपर भी सेम होगा नीचे भी सेम पर एंड करेगा। तो थोड़ा सा पतला हुआ। नाउ अभी थोड़ा कलम और मूव करके 20 डिग्री पे जाएंगे एंड अगेन मेक 10 लाइंस फॉर 20 डिग्री। ठीक है, अब सी यहाँ पर दोबारा से अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ। अब क्या हुआ, ये छोटा सा सर्कल जो मेरा यहाँ पे ज्यादा छोटा था वो थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा और छोटा है यहाँ पर, वैसे मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया उधर। ये है मेरा 10 डिग्री का सर्कल और ये मेरा आया 20 डिग्री का। अब इसमें और इसमें फर्क आपको नजर आ रहा होगा, है ना। ये लोग यहाँ पे भी एक बना देती हूँ। ठीक, कितना छोटा सा मेरा यहाँ पे सर्कल आ रहा है ना, बहुत छोटा सा है। बट व्हेन इट कम्स टू 20 डिग्री वो मेरा सर्कल क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि मेरा एंगल बड़ा है। तो अब ये 20 डिग्री हो गया। 20 डिग्री जब हुआ तो 0 डिग्री और 20 डिग्री के अंदर थिकनेस में कितना फर्क आया है, राइट। थिकनेस आपकी कम होती जाएगी जैसे जैसे आप अपने एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे। तो 0 डिग्री में मैक्सिमम आपकी जो है थिकनेस थी, 20 डिग्री पे कम हुई है अभी। ऐसे ही करके आपने क्या करना है, नाउ यू विल मूव योर कलम टू 30 डिग्री एंड यू विल मेक अ लाइन फॉर 30 डिग्री नाउ। ठीक है, 30 डिग्री का हो गया। सी दोबारा मैं यहाँ पे लगाती हूँ एंड यहाँ पर मेरा एक और जो है सर्कल आया जो कि उससे बड़ा है। ठीक है, ये मेरे जो सर्कल यहाँ पर बन रहा है ये मेरा 20 डिग्री वाले से बड़ा सर्कल बन रहा है। फाइन, अगेन थिकनेस यहाँ पे कम होती जा रही है। अभी 40 डिग्री का एंगल हम ले लेते हैं। ये मैंने रैंडम लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा लगेगा, बट जब आप करेंगे एग्जैक्टली उससे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखो ये जब 30 से 40 में आया तो और बढ़ गया, राइट, और थिकनेस क्या हो गई इसकी, और कम हो गई, पतला होता जा रहा है ये। अभी 50 डिग्री मेरा, मैं जस्ट रैंडमली बना रही हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोगों को ये सीधा सीधा बनाना है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। कितने हो गए, एक बार बना देती हूँ, सीधा सीधा बनाना। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन लगा रही हूँ ऐसे करके, और ये देखो अब मेरा सर्कल और बड़ा हो गया ना। सर्कल बड़ा हुआ और थिकनेस और कम हो गई। अब देखो 0 डिग्री में जो थिकनेस है मेरी वो 50 डिग्री में नहीं है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा जो कलम का जो थिकनेस है वो
कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाती जा रही हूँ। तो यहाँ तक हमारा 50 डिग्री तक हुआ। ऐसे ही करते करते आपको अब जाना है 60 डिग्री पर। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 लाइनें लगा दूंगी, ठीक है। 4 तो मेरे ख्याल से मैं लगा ही रही थी। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। अगेन यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगी मैं, एंड सी यहाँ पे एक और बड़ा सर्कल आ रहा है, ठीक है ना। एक और बड़ा सर्कल बन रहा है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज 60 डिग्री एंगल। नाउ अभी 70 डिग्री पे जाएंगे। 70 डिग्री पे और ज्यादा मूव होगा। अब देखो थिकनेस कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, राइट। अभी देखो सर्कल कितना बड़ा हो गया है, यहाँ पर हो रहा है ना सर्कल बड़ा मेरा। तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री का एंगल। अभी अगेन 80 डिग्री के एंगल पर जाऊंगी मैं, ठीक है। 80 डिग्री के एंगल पर अब देखो, अभी 80 डिग्री का एंगल मैंने बनाया। सी यहाँ पर कितना बड़ा अभी मेरा सर्कल आ रहा है, ठीक है। अभी ये क्या है मेरा 80 डिग्री का। यहाँ से देखो सर्कल यहाँ तो था ही नहीं, पहली बात जीरो पे था, धीरे धीरे शुरू हुआ। सर्कल का साइज ही देखते जाओ, और अब देखो कहाँ तक मेरा सर्कल पहुंच गया है। अभी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में क्या होगा, पूरा पेन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा एकदम ऐसे। जो मेरी ये जितना ब्रॉड है मेरा पेन, वो क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट बनेगा। अभी आपने क्या करना है, अगेन ड्रॉ लाइन्स ऑफ 90 डिग्री एंगल ना। देयर इज नो सर्कल नीडेड बिकॉज वहां पर स्पेस ही नहीं है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, अगेन फ्लैट हेड्स, फ्लैट। बट लुक एट द थिकनेस। थिकनेस आप देखो, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करा था, एंड व्हेन इट कम्स टू 90 डिग्री वहां पे एंगल्स कितना ज्यादा हमारा मोटा पतला हुआ है, हुआ है। कम ऑन से यस एंड नो गाइस। Yes. ग्रेट। तो यहाँ पे आपको एंगल्स समझ में आए। आपको 0 to 90 डिग्री के एंगल्स के साथ हैंड प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिखाई है। आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। मेरी तरह बनाना मत, इसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद आप उसको रखकर पहले उसी को रखकर फिर बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एक डी लिया, वहां रखा, एंड देन मेक द ड्रॉइंग। जब वो बन जाएगी उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उस पे पेन, जैसे मैंने यहाँ रख रख कर आपको दिखाया ना कैसे बने हैं, वैसे ही आपने रख रख कर ऐसी लाइंस बनानी है। और हर एंगल की लाइन जो आप बनाएंगे वो एटलीस्ट 10 बनानी है, एटलीस्ट 10, ठीक है। 10 से ज्यादा भी बना सकते हो, 10 से ज्यादा भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट 10 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, हैंड ड्रिल्स एंड दिस एंगल्स, एंगल प्रैक्टिस, ठीक है। ये 2 चीजें आपका होमवर्क है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ओके। इज इट क्लियर? Yes. ओके। वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि किट जो है वो हमारी तरफ से ही लेट डिस्पैच हुई है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये है कि आपका वक्त भी जो है ज़्यादा वो नहीं होगा ख़राब, और आपकी क्लासेस भी ज़्यादा मिस नहीं होंगी। इसलिए जो क्लासेस हैं वो जब तक आप लोगों को किट नहीं मिल जाती, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है इस वीक के अंदर मिल जाएगी। तो फॉर दिस वीक हमारी जो क्लासेस हैं वो अल्टरनेटिव डेज पर होंगी, ठीक है। जैसे कि आज मंडे है, आज आपकी क्लास हुई है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगी। Fine. Till then, just keep on practicing whatever I am teaching in the class. So इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी जो क्लास है, because basically in Arabic calligraphy you will going to need your kit. Without that kit you can't do it. ठीक है। एंड हमारी तरफ से डिले सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज वहाँ पर एक मटेरियल अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो आपकी क्लासेस जो है अभी हुई है मंडे को, अब आपकी क्लास होगी वेंसडे को, ठीक है। वेंसडे को क्लास है अब आपकी। तो आप लोगों ने जब तक क्या करना है, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दीज एंगल्स। आप 10 की जगह 20 भी कर सकते हो। आई ओपन द ग्रुप फॉर यू गाइज फॉर टुडे, नॉट फॉर टुडे, अभी खोल देती हूँ मैं उसको आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर करके उसमें पोस्ट करेंगे। एंड रिमेंबर, आपने मुझे फेयर वर्क भेजना है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस वर्क मुझे मत भेजिएगा, मुझे फेयर वर्क भेजिएगा, फाइन, ठीक है।
जी. Okay, great. Okay, everyone. So this is all for today. If you guys have any question, you're free to ask. किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. Ma'am, you said that you will Hmm. show the numbers something. Numbers. I mean the code or something for the delivery. Oh, tracking code. Yeah. Right after the class, I'll share it. It's in my hand. See, it's here. So I'll share it after the class. Okay? Okay. Because this is going to be posted on YouTube, so I can't share it over here. ठीक है जी? Okay. Any other question? किसी का कोई और सवाल? I had a question. Yes, you have a question. Go ahead. When I was taking the angles, the end part of it becoming 0 degree. It was a straight line. I Hmm. thought, how will I practice it to make it perfect? Mm, you just have to practice. Slowly you will become perfect. 0 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा. 0 डिग्री का आ रहा है, लेकिन 20 या फिर 50 कुछ भी लेने से वो लास्ट में जाके 0 हो जा रहा है. So you have to keep your hand stable for that. ठीक है. जैसे अच्छा. आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हो, मेक श्योर के एंडिंग में भी वही सेम आए. ऑल्सो जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप मार्कर यूज कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो टिप होती है वो इस तरह की होती है. सो यू कैन यूज दिस. सो लेट्स टेक 60 डिग्री. ये 60 डिग्री के लिए तो पेन भी नहीं चलते कभी कभी. यू गेट इट राइट. जस्ट यूज दिस वन एंड इससे भी आपका जो है वो सेम एंगल बन जाएगा. तो अगर कलम नहीं है जब तक इसका यूज कर सकते हो. एंड इफ यू कैन फाइंड अ ब्लैक कलर इन दिस हाइलाइटर, आई हैव वन, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हो. ठीक है. ट्राई टू फाइंड अ ब्लैक हाइलाइटर, बट सिजल टिप होनी चाहिए. आलिया, आपको उसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डियर. मेक श्योर कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं 50 डिग्री से, तो आपका हैंड स्टेबल रहे, उसको हिलाना मत, मूव मत करना. ठीक है. अच्छा, सी, ठीक है. ये जो चीज है ना, ये आप लोग आगे भी सीखेंगे कि कैसे आपने मूव करना है. 60 डिग्री का मैं एंगल ले रही हूँ एंड आपका ये एंगल इस तरह से एंड हो रहा होगा, है ना. नीचे आते आते मोटा हो जा रहा होगा, 0 डिग्री पे हाँ. आके एंड कर रहा होगा. वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप यहाँ से अपना हैंड जो है वो, देखो मेरा हाथ ध्यान से देखो कैसे चल रहा है. ऐसे शुरू करा मैंने. ठीक है. स्लोली 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 स्लोली, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, कलम घुमा दे रही हूँ, हाथ घुमा दे रही हूँ, और ये लो मेरा कलम अभी क्या हो गया, साइज क्या हो गया, अभी 0 डिग्री का आ गया. ठीक है. अभी ये 60 डिग्री नहीं रहा. तो आपने क्या करना है कि थ्रू आउट योर स्ट्रोक आपका हाथ हिले ना. ठीक है. मूव ना करे, आपका कलम भी मूव ना करे. ठीक है. जैसे ये रखा यहाँ पर, तो नीचे भी वो वहीं पर ही एंड करना चाहिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है. यही तो प्रैक्टिस करनी है अपने एंगल्स की. एंड जब आप बनाएंगे अपने स्ट्रोक्स, तो वहां पर सारे स्ट्रोक्स आपके मिक्सअप हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री के एंगल पर आप रखकर स्ट्रोक बना रहे हैं, नीचे जाएंगे और सी अभी ये क्या हो गया, 90 डिग्री पे एंड कर रहा है. ठीक है. नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, बट एकदम कम आ गया. तो इस तरह के स्ट्रोक्स आपके यूज होंगे. सो बिफोर जंपिंग ओवर बेसिक स्ट्रोक्स, आई वांट यू ऑल टू लर्न दिस. ठीक है. टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इसमें एक बार हाथ जम जाएगा तो आगे ये इशू नहीं होगा आपको. ठीक है. क्लियर है गाइस? Yes. थैंक यू. Okay. So, Abhi, I am ending the session over here. Just do practice of these two things, angle practice, and other one is your hand drills. ठीक है. हैंड ड्रिल्स की प्रैक्टिस करनी है आपने और एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. चलिए, तो अब हम आपसे मिलेंगे वेंसडे को. टिल देन टेक केयर. कोई सवाल किसी का? नो क्वेश्चंस? जस्ट से यस और नो. No. Okay, great. So we'll meet you on Wednesday. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Walaikum assalam.